بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر اس ایف آئی آر کے گرد گھوم رہی ہے جو اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف آج صبح لاہور کے تھانہ شاہدرہ میں درج کی گئی۔ اس میں 2 سابق وزراء اعظم، 3 سابق جرنیل، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، 1 وزیر خارجہ بھی شامل ہیں جن پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات جو اس میں ہے، سٹنگ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا نام بھی اس ایف آئی آر کے اندر درج کیا گیا ہے، جس حوالے سے کشمیر کے اندر بھی آواز اٹھ رہی ہے اور سوشل میڈیا اس حوالے سے مذمت میں بھرا ہوا ہے۔ اور ابھی جو ٹویٹ سامنے آیا ہے وہ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب معاملہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے علم میں لایا گیا تو انہوں نے اس ایف آئی آر کے حوالے سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ شاید کسی نے اپنے کارروائی ڈالنے کے لیے ایف آئی آر درج کرا دی ہو۔ اب ہوگا کیا؟ اور خاص طور پر آج بھی اپوزیشن نے اس پر تمام دن پریس کانفرنس کی، بیانات دیے جاتے رہے۔ اب جو رخ اختیار کر رہی ہے پاکستان کی سیاست وہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا پڑنے والے ہیں، اور جس طریقے سے معاملات کو رگیدا جا رہا ہے اس کے اوپر کیا ہونے والا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع۔ اور ساتھ ایک اور اہم موضوع ہے، وہ ہے ٹی وی کے اوپر فحاشی والا، اس پر بھی بحث جاری، اس پر بھی آج پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اور آج ایک اہم شخصیت جماعت اسلامی پاکستان کے شعبہ امور خارجہ کے سربراہ نائب امیر جماعت اسلامی جناب عبدالغفار عزیز انتقال فرما گئے، آج ان کی تدفین ہوئی۔ ان کی خدمات، ان کی شخصیت پر بھی کریں گے پروگرام میں بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آج جو ہے پریس کانفرنس ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بھی گرجے برسے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا وہ سن کر پھر پروگرام کو آگے بڑھا دیں۔ پاکستان کے 2 سابقہ وزیر اعظم، آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم، اپوزیشن کے لیڈرز اپوزیشن، سینٹ کے لیڈرز دی اپوزیشن، پاکستان کے سابقہ اسپیکر، پاکستان کے سابقہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، پاکستان کے 2 سابقہ وزیر دفاع، پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ، پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ، کے پی کے سابقہ گورنر، 16 سے زائد سابقہ وفاقی وزراء اور 3 سابقہ پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر اس کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ جی عاریہ صاحب، گفتگو آپ نے سنی ہے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا سر۔ یہ اب انہوں نے یہ بیان ہے، یہ ایسے ہے جیسے ابھی آج سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ مرتکب ہوئے ہیں، یہ پاگل گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں، کیپٹن صفدر پہ مقدمہ ہوا، آج اس نے ضمانت کرائی ہے۔ وہ بھی ضمانت بھی اور چیز ہے، مقدمہ دیکھیں، ایف آئی آر آپ بھی جا کے، ایک پاگل آدمی بھی جا کے ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے۔ اور سٹنگ کے خلاف میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، سٹنگ کے خلاف ہوتی ہیں ایف آئی آر تو اتنی ہوتی ہیں روز۔ ایف آئی آر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جا کے تھانے میں جاتے ہو، آپ کہتے ہو مجھے ذوالفقار بھٹو نے قتل کیا یا مجھے بلاول نے قتل کیا، زرداری نے قتل کیا، وہ لکھے گا آپ کا رائٹ ہے کہ ان رائٹنگز کو لکھنا پڑتا ہے، پاکستان کا قانون جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک پورا مقدمہ بنانا۔ کیا کسی وزیر نے بات کی ہے، کیا جی ایچ کیو سے کوئی بندہ ہے کہ فلانے جگہ، پھر آپ کی آج سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے اٹھا کے پرے ماری نواز شریف پر پابندی کی درخواست عام آدمی کی۔ اس نے کہا تمہارا کون سا حق متاثر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا فورم زور ہے، نہیں، فورم تو گورنمنٹ بنتا ہے نا جی، اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ کیا آپ کو اتنی بڑی ریلیف کون دے رہا ہے؟ اسی جوڈیشل سسٹم دے رہا ہے۔ پابندی تو آلریڈی لگی ہوئی ہے۔ نہیں، اس نے کہا پابندی، وہ آپ پابندی دکھائیں نا، یہ بات پیمرا کا آرڈر نہیں، پیمرا کا آرڈر تو درمیان میں اٹھا بھی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اس ایشو کو چھیڑ کے، مجھے لگتا ہے کہ ایسے دانے وانے ختم ہو گئے ہیں۔ میں ایک ایف آئی آر کی بنیاد پہ آپ وزیر اعظم، 3 وزیر اعظم، 2 فلانا، او بھائی مجھے یہ بتاؤ، کیا دنیا میں عام آدمی غدار ہوتا ہے؟ ہوتا ہی وزیر اعظم غدار ہے۔ میر جعفر کون تھا؟
मीर सादक कौन था? दोनों वज़ीर आज़म थे। दोनों को कहते हैं जाफर बंगाल, सादक दकन, नंगे मिल्लत, नंगे दी, नंगे वतन। वो तो आम आदमी नहीं था। ये बहस ही गलत है। पाकिस्तान में इसको इशू को बनाना और इस इशू को खड़ा करने के लिए असल इशू क्या है जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रोज FIR दर्ज हो। जिस वक्त भुट्टो का नाम FIR दर्ज में हुआ था ना इस थाने में, ये जो क्या नाम है शादमान वाला, उसने करवाया था मोहम्मद अहमद खान के बेटे ने, मोहम्मद कसूरी ने। तो उसने कहा था कि परवाह मत करो, दर्ज मजाक उड़ता था। FIR दर्ज हुई ना, FIR वाकई होती कोई चीज नहीं। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, ये हो, और सबसे बात है इस पे किस चीज पे गिरफ्तारी करेंगे? एविडेंस ऑलरेडी देयर, आपने अदालत चलान जमा कराना। तो ये पाकिस्तान में सुबह से मीडिया भी चल रहा है, नून लीग भी कैच कर रही है। मसला सारा ये है कि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हुई है, जो नाम इन्होंने लिया है, ये ने अब किस तरह से एक्ट कर रही है, ये है असल इशू। पीपल पार्टी बैकफुट पे है। उन्होंने कहा हम तो जनाब 18 अक्टूबर को हम तो मनाएंगे बेनजीर का वो दिन कारसाज। लेकिन इत्तेफाक हो गया कि हम जलसा कर रहे हैं 25 को। सर 11 को क्या था? और क्या इत्तला है आपके पास? क्या इत्तला? जिस दिन कोई पार्टियां इत्तेहाद ये फैसला कर लेना कि हमने कोटे से समझो उनके दाने खत्म हो चुके हैं। नहीं, अब तो पहला जलसा गुजरांवाले हो रहा है ना। अब गुजरांवाले नून लीग का, नून लीग तो जलसा कर चुकी है अपना। नहीं, गुजरांवाले है अभी। गुजरांवाला होगा, मैं कहना वो तो होगा, देखा जाएगा ना जिस दिन ये, वो भी नून लीग का अपना जलसा है। PDM का जो ही इत्तेहाद ये फैसला कर ले कि हमारे में सिर्फ तफसील से शायद आपको डिस्कस भी किया था कि कोयटा में कैसा क्राउड होता है, किस तरह का होता है। कोयटा में मेजॉरिटी जो जलसा होता है वो बसों से आती हैं और बसें सारी स्मगलिंग होती है। ऊपर पार्टी का झंडा लगाते हैं, चमन से स्मगल का माल लोड किया, चीजें वहां मेजॉरिटी ऐसी होती है। कोयटा शहर में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसमें 10,000 से ज्यादा बंदा आता हो। कोयटा में कभी जलसों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। कोयटा में कभी आंसू गैस इस्तेमाल, आंसू गैस के सेल पड़े जो हैं वो, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी वहां ये होता नहीं है। वहां ये सूरत, तो ये होता है सारे का सारा। अब मसला ये है कि खुद अच्छा 11 के लिए हम 11 को नहीं करेंगे, हम 18 को करेंगे। पहले तय हुआ 18 को, फिर उसके बाद में ये हो गया क्या नाम है अपना, अब तो 25 को जो भी है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब आ गए। उनकी मिसालें दी जाती हैं नवाबजादा नसरुल्लाह के साथ। अच्छा, नवाबजादा नसरुल्लाह एक सेल्फलेस किस्म का आदमी था, उसको कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो वज़ीर आज़म बने या ना बने। मौलाना को जिस दिन मौलाना जुलूस लेके निकले थे, आपको याद है मैंने पहले दिन ये कह दिया था कि ये धरना कामयाब इसलिए नहीं होगा कि मौलाना ने इसके नतीजे में वज़ीर आज़म नहीं बनना। और मौलाना क्यों चाहेंगे कि बाकी दो पार्टियां जो है उनके साथ, अब मौलाना किसी और को बनाने पे तैयार नहीं है तैयार। तो मौलाना कतन नहीं चाहते हैं। मौलाना उस वक्त तक चलेगा जब तक उसका फायदा बरजारी और पेरजीर इन दोनों में किसी को ना पहुंच रहा हो। जहां होगा, मौलाना को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं सर। और दूसरी बात यह है कि मौलाना का अपना वर्कर जो है वो बड़ी मुश्किलों से निकला था। आप जरा सब मदारस के उस मोहतम से बोले ना, मैं ये नहीं कहता, एक फड्डा शुरू हो गया है और उसको बुरी तरह हैंडल कौन कर रहे हैं? इमरान खान साहब के मशीर बहुत बुरी तरह हैंडल कर रहे हैं। ये इशू होना ही नहीं चाहिए था। इमरान खान को शहबाज गिल के उसमें आने पर पाबंदी लगनी चाहिए, लगा देनी चाहिए। एक नीचे वो शहबाज गिल का दूसरा डिटो कॉपी जो है, इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? वजीर दोस्त है हमारे, हमारा भी दोस्त है, हमारे डिटो कॉपी नहीं है, बहुत फर्क है सर। अच्छा, अभी ज्यादा बासलाहियत है। कोई फिक्रा, कोई चीज, हमारे भी दोस्त हैं। मसला सारा ये यार कुछ खुदा, ये तो खैर इलेक्टेड आदमी है, फैजल चौहान तो इलेक्टेड आदमी है। शहबाज गिल की क्या हैसियत है? कोई उसको परवाह नहीं है किसी चीज की। अमेरिकन नेशनल है, जो मर्जी बोलता जाए, इसी तरह के फिक्रे बोलता चला जाता है। ये जो इतने बड़े मशीरों की टीम है ना, ये जो खत्म हो रही है। जो मशीरों की टीम है, जो इल्जाम लग रहे हैं कि मरियम नवाज ने खोकर पैलेस में भारतीय एजेंट से मुलाकात की, यही नवाज शरीफ साहब ने लंदन में किस सफारतकार से किस सफारत खाने में मुलाकात की, तो सामने लाए ना। मैं वही तो कहता हूं ना कि मसला सारा ये है कि एक किसी के पास कोई दाने नहीं है। जब ये मामला आ इधर से भी एक ब्रिगेड तैयार हो गई है जवाब देने के लिए। जी, तो 4 बंदे, तलाल चौधरी भी है, तलाल चौधरी शामिल है, दानियाल साहब शामिल है, पूरी टीम है। जुबैर साहब जो है वो बाकायदा तर्जुमान मुकर्रर हो गए। 4 बंदे हैं। और हेड उनकी मरियम औरंगजेब है। ये भी तैयार हो। ये इसका मतलब है कि फिर जातियात के ऊपर इल्जाम तराशी। पब्लिक हैज नो इंटरेस्ट। पब्लिक का मैं उस दिन गुजरा हूं रीगल चौक से,
37 आपके MP MNA हो, 10 बंदे भी साथ लाए ना तो उससे बड़ा जलसा होता है। जो रीगल में था, 7 वाली सड़क खाली थी, मैं गाड़ी चला के गुजरा वहां से। ये औकात है नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें ही नहीं है ना। शहबाज गुल पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है ना ये इनकी इंटरेस्ट की चीज है। बस किसी को क्या दिलचस्पी है कि नवाज शरीफ जिंदाल के साथ मिला था या फलां के साथ मिला था, कोई दिलचस्पी नहीं। उसको तो ये पता है कि भाई मेरी जो चीनी है वो 120 रुपए किलो मिल रही है मुझे, ये चीज है। उस पे बात कौन इस पे करेगा? इस पे अपोजिशन बात करती है? नहीं करती। उस पे करती है? नहीं। लोगों को क्या पड़ा है? आइन की वफादारी करनी है तो बगावत, तो हर बार रोज बगावत होगी। अब भाई आइन लोगों ने चाटना है पकड़ के आइन को। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम औरंगजेब ने, वो जो इदारा शुमारियात के जो जी सामने आए। लेकिन सर बेसिक इशू यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी अगर कोई सियासत को जाने ना, मैं एक वाकया बयान करता हूं। सेनेटर तारिक चौधरी साहब, अच्छा, जानते होंगे? हाँ जी बिल्कुल। सेनेटर तारिक चौधरी साहब ने लिखा है कि एक इजलास था जुनेजो के वजीर आजम के पास। नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स इस किस्म की है, उससे आपको और दोनों जिंदा हैं, दोनों तरदीद करें अगर ये वाकया करा था। उन्होंने लिख दिया नवाज शरीफ तरदीद करें। उसने कहा हम सारे बैठे हुए थे, सेंटर्स भी से सारे, तो जनरल जिलानी उस गवर्नर और चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। तो सेंटर्स ने कहा कि जिलानी साहब क्यों बैठे हुए यहाँ पर, हम अपनी पार्टी की, क्योंकि हुआ यह था कि बड़ी बदमज़गी हो गई थी सेनेट में। तो हम सियासत डिस्कस करें, जरनैल का यहाँ क्या काम है। तो बड़े बदमजा, पहले मैंने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा आप नहीं जानते ये गवर्नर जिलानी है। हम इस तरह उन्होंने दिया। उसके बाद शोर शर मच के तो जिलानी साहब उठ के चले गए। कहता है बदमज़गी हुई, मुझे उन्होंने कहा आपने माजरत करेंगे करें। मैंने कहा मैं माजरत नहीं करता हूँ। उसके बाद कहते हैं मैं अगले दिन नवाज शरीफ से CM हाउस से मिलने गया, CM ऑफिस में। तो 5-6 सेनेटर्स बैठे हुए थे जो मिलना चाहते थे। वो सुबह से कहते हैं हम बैठे हुए, मुलाकात नहीं दे रहा। सही। मेरा पता चला तो मुझे बाहर आकर रिसीव किया, अंदर आए गपशप। मैंने उनको कहा कि मेरे आप सुने आपके बड़े मौसन है, ये हैं वो हैं, तो मैं तो माजरत करने भी आया था ये। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि एक बात मैं आपको बताऊं, ये नवाज शरीफ है और वाकई यही है कि जनरल जिलानी के इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर, इतने एहसानात हैं कि हमारा पूरा खानदान जो है उसको नहीं चुका सकता। लेकिन अगर ये गवर्नर लगा रहा तो मैं वज़ीर आला कैसे कहां कहूंगा। आपने बहुत अच्छा किया। मतलब अगर यही गवर्नर रहना है तो ऐसी कितने वज़ीर आला, ये तो मेरा खानदान ही इसके खिलाफ मुझे एक तो मुझे आजाद होने नहीं देगा। ये मैं बात कर रहा हूं, जनरल जिलानी भी जिंदा। इसका मतलब है बगावत का जरासीम पहले से। जी मैं जानता हूं ना। अच्छा। ये नवाज शरीफ आइन की हुक्मरानी की बात कर रहे थे ना। कि भाई फौजी क्यों बैठा, जमहूरियत को पनपना, जमहूरियत को पनपना चाहिए उस वक्त से। यानी ये मैं एग्जैक्टली। और ये नवाज शरीफ के अंदर हमारा एक दोस्त है, बहुत अच्छे आला होते पे था वो, फिर इनका दोस्त, इनका मशीर बन गया। उसकी माफी तलाफी के लिए मैं परवेज रशीद गए। शहबाज शरीफ ने माफ कर दे, ऊपर नवाज शरीफ की कागज में माफी नाम की कोई चीज नहीं है। उनका जो कीना है इस मसले के अंदर बहुत शदीद है। अच्छा, अब वो इसी पे चल रहे हैं। कट शॉट ये किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं हालात? आप कुछ भी नहीं, मैं आपको बताऊं जनवरी तक। सर जिस दिन पहले दिन मैंने क्या कहा, कोयटा में से मैं कहा था कोयटा से होगा और गवर्नमेंट चले जाएगी, और कोयटा से हुआ। सर कोयटे में जाता ही वो है जिसके दाने खत्म हो जाए अपने इलाकों में। अच्छा हाँ, कोयटा जलसा करने की जगह नहीं है। नहीं कोयटा में वो तो कराची में होगा, उससे पहले गुजरांवाला होगा। लेकिन एंड शॉट क्या है कि ये जो हालात, ये जो बयानबाजी, जो अभी इल्जाम, ये इसी तरह नजर आ रहे हैं कि कोई बैठ के इन सबको बिठा के कोई मुल्क को आगे ले जाने की बात करेगा। 3 तरीके हैं, कोई मुल्क 3 तरीके हैं इस मुल्क के अंदर। हमें 70 साल हो गए हैं, जेल हमने काटी है, पुलिस के डंडे हमने खाए हुए हैं, पुलिस के साथ मिलकर डंडे हमने मारे हुए हैं, दोनों काम किए हुए हैं। पाकिस्तान में चौथा कोई तरीका नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट चले और फौज इख्तियार में आ जाए, या फौज कुछ चक्कर चुक्कर चला के, साफ नाम लेता हूं, कुछ चक्कर चुक्कर चला के वो किसी और को ले आए। और तीसरा ये है कि कोई ऐसा आईनी अरेंजमेंट हो तो कोई तब्दील हो जाए। कोई अगर समझता है ना कि पाकिस्तान में इमाम खुमैनी पैदा हो गया है, या पाकिस्तान में स्टालिन या लेनिन पैदा हो गया है, या पाकिस्तान में कोई माओ ज़ेडुंग पैदा हो गया है, और सिर्फ पैदा होने से नहीं, और कौम भी ऐसी पैदा हो गई है कि 50,000 बंदा सिर्फ वहां मार दे,
اس میں یوکرین میں، اور قوم بھی ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ پورا سال جو ہے قتل و غارت ہوتی رہے ایران کے اندر. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اس لیے میں تو پریڈکٹمنٹ نہیں کر سکتا. 126 دن عمران خان چی کرتا رہا تھا. اگر پاناما کا کیس نہ نکلتا نواز شریف اب تک وزیر اعظم ہوتا. اچھا. اور پاناما پاکستان نے نہیں نکالا تھا، پاناما کہیں اور سے نکلا تھا. آپ کو ہی پتا کہاں سے نکلا تھا. یہی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک اور اہم ایشو.